Yes, now get ready. We are doing chapter production function. Three types of returns to a factor are there: increasing, constant, and diminishing returns to a factor. Out of these three, one has been covered. I am repeating the statement. You please listen very carefully. Increasing returns to a factor, या this law, आगे law word आ जाता है. The law of increasing returns to a factor tells us, या states that as more and more units of a variable factor are employed या used along with other fixed factors of production, comma, now we have to tell in terms of two things: one total product, one MP, marginal product. So then what happens? Total product increases at an increasing rate and marginal product of the variable factor increases. ठीक है, बुक में करेक्शन करवा दी हुई थी. देन टेबल आपने बना लिया. डायग्राम वाज लेफ्ट, वो रह गया था हमारा. नाउ डायग्राम प्लीज ड्रॉ अलोंग विद योर स्टेटमेंट. What diagram? We have to show total product. In other diagram, we have to show marginal product. यहाँ लिखो marginal product, नीचे label. No need to plot the points of the table. That is not required. Wastage of time की उसकी जरूरत नहीं है. अगर उसको plot भी करें तो this type of shapes we will be getting in our diagrams. This PP increasing at the increasing rate. See the shape of this line in steep slope है. अगर मैं diagram में if I draw तो उससे आपको याद आ जाएगा. In chapter cost of production एक हमने diagram किया था variable cost का. ऐसा डायग्राम किया था वेरिएबल कॉस्ट. अब इसमें टू शेप्स आर कंबाइंड. यहाँ तक ये जो शेप है ये डिमिनिशिंग रेट होता है, स्लो स्पीड से बढ़ना. और ये वाला जो पार्ट है स्टीप स्लोप है, मतलब तेज स्पीड से राइज करना, फास्ट स्पीड से बढ़ना, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना. ये वाला तो आई हैव ड्रॉन हियर. ये वाली साइड दिखाई इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है. ठीक है. ऑन द अदर साइड क्या लिखा था हमने? एमपी इंक्रीजेस. तो ये एमपी की लाइन आपके टेबल में देखिए, आपने लिखा 2 4 6 8 10. तो ये अपवर्ड एरो इस करके लगा दिया. कोई बच्चा ये ना समझे कि लाइन का मतलब तो डाउनवर्ड भी हो सकता है, इसलिए अपवर्ड लगाया कि ऊपर की ओर जाती है. ठीक. अभी आई वाज चेकिंग द असाइनमेंट्स, तो मेनी स्टूडेंट्स वो ऐसे एरो लगा लेते हैं. प्लीज ये नहीं लगाना. कर्व के साथ कोई एरो नहीं लगाना होता है. एरो सेपरेटली यू कैन शो, राइज का दिखाना है, डाउन का दिखाना, जो भी दिखाना. कर्व के जो मेन डायग्राम है उसके ऊपर कभी भी एरो नहीं लगाना. ठीक है. सो एमपी ऑफ, ये L का मतलब एमपी, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर लेबर. ठीक है. ये चेंज किसके करके आ रहा है? नॉट बिकॉज ऑफ फिक्स्ड फैक्टर. ये चेंज सारा कुछ आ रहा है ओनली बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर लेबर. ठीक. कॉजेज वर डिस्कस्ड इन डिटेल. 3 कॉजेज आर देयर. पहला कौन सा था? बेटर यूज ऑफ कौन सा फैक्टर? फिक्स्ड फैक्टर. सेकंड था बेटर यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर, या हेडिंग कुछ भी बना लो, एफिशिएंट यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर. थर्ड था बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टू. ये एक पार्ट हो गया था हमारा यहाँ. ठीक. नाउ प्लीज राइट द सेकंड. अगेन राइट द मीनिंग ऑफ दिस सेकंड. कांस्टेंट रिटर्न्स. राइट द डेफिनेशन करेक्टली. बुक में थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं. द लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू ए फैक्टर स्टेट्स दैट the law of constant returns to a factor states that as more and more units of variable factor, I repeat, the law of constant returns to a factor states that as more and more units of variable factor are employed with other fixed factors of production, comma. ये लाइन सेम ही है, सभी में सेम ही आना है. स्टार्ट ही ऐसे हो गया. जो पहले लिखा था वही लिखा है, सेम ही है. ठीक है. along with other fixed factors of production, comma, total product increases at a constant rate. Total product increases at a constant rate and marginal product remains constant. Total product TP, total product increases at a constant rate and
marginal product remains constant. With the help of table and diagram, let us try to understand it. Again, labor, total product, marginal product. Labor 1, 2, 3, 4, 5. Total product 10, 20, 30, 40, 50. These are hypothetical examples. Hypothetical होता है intentionally they have been made to understand the topic, to understand the concept. ठीक? Total product 10, 20, 30, 40, 50. Marginal product of ये labor मतलब variable factor. अब marginal product क्या है? Change in total product. तो change कितना आया यहाँ पे? Again look here. First unit of labor is being employed, तो उसके आने के करके total product हो जाता है 10. ठीक है? मशीन ने अपने आप कुछ नहीं किया, इसने आया पर्सन मशीन के साथ काम किया, लोहे का 10 यूनिट्स बना लिए. तो what change in total product has taken place because of the employment of this factor? कितना चेंज आया? सेम ही आया 10 ही. तो पहले के ऊपर सेम ही रहेगा 10. अब सेकंड वर्कर को लगा लिया. नाउ सेकंड वर्कर के आने के करके टोटल प्रोडक्ट हो जाता है 20. तो इस सेकंड वर्कर की अपनी प्रोडक्टिविटी कितनी होगी? इसकी अपनी 10. डिफरेंस निकालेंगे इन दोनों का, वो लिख दिया 10 का. फिर थर्ड वर्कर आया, उसके आने के करके टोटल काम हो गया, इतने यूनिट्स बना लिए उन्होंने 30 यूनिट्स. इस थर्ड फैक्टर की अपनी प्रोडक्टिविटी इंडिविजुअली इसने कितना एडिशन किया? 30 माइनस 20, ये लिख दिया 10. ऐसे ही फोर्थ वर्कर ने आने से टोटल इतना सामान बन गया. इस फोर्थ वर्कर की अपनी प्रोडक्टिविटी कितनी? 10. सेम विद द अदर. अच्छा, अब ये सारे जो फैक्टर्स हैं ऑल आर गिविंग द सेम कंट्रीब्यूशन. पहले वाले में क्या किया था? हर एक नेक्स्ट वेरिएबल फैक्टर इज शोइंग मोर एफिशिएंसी, पहले से ज्यादा प्रोडक्शन करके दे रहा है, ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है. बट यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है. अब ये सारे जो वेरिएबल फैक्टर आर बीइंग यूज्ड, वो सेम ही उनका कंट्रीब्यूशन है, सेम तरीके से काम कर रहे हैं, उतना ही अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं काम के अंदर. तो जब अगर इस तरह से हो तो उसको कहा जाता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू ए फैक्टर. तो फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे पहला आदमी लगा लो चाहे पांचवा लगा लो, सब एक जैसे ही हैं, तो फर्क ही नहीं है. ठीक. अच्छा, क्या रियल लाइफ में ऐसे होता है? सोच लीजिए, क्या सारे वर्कर्स की एफिशिएंसी बिल्कुल 100% एक जैसी होती है? मिलती जुलती हो सकती है, ठीक है, बट स्टिल सम वेरिएशन तो कहीं ना कहीं हर एक आदमी के काम करने के तरीके में सम वेरिएशन इज ऑलवेज देयर. ठीक. बट तो ये यहाँ पर चलो स्टडी के तौर पे यहाँ करना पड़ता है हमें कि अगर ऐसे हो, इफ दिस टाइप ऑफ थिंग हैपेंस, तो इस तरह की रिटर्न्स अगर आए तो दे आर नोन एज कांस्टेंट रिटर्न्स. ठीक. तो मार्जिन आपने क्या लाइन लिखी? टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एट ए कांस्टेंट रेट. सेम कांस्टेंट मतलब सेम रेट से बढ़ रहा है. जो भी है 10 है तो 10 से ही बढ़ रहा है. 5 का एग्जांपल बना ले तो 5 से बढ़ेगा. जो भी रेट है सेम ही रहता है. एंड मार्जिनल प्रोडक्ट इज रिमेनिंग सेम, रिमेन्स कांस्टेंट या रिमेन्स सेम. ठीक. अब अगर बनाना हो इसका डायग्राम तो क्या बनेगा? अगेन 2 डायग्राम्स. ये बन जाएगी टोटल प्रोडक्ट और ये बन जाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट. इधर लिखना है टोटल प्रोडक्ट, ये वाला डायग्राम मार्जिनल प्रोडक्ट. प्लीज थोड़ा जल्दी ड्रॉ करिए, सिंपल है ये, कोई डिफिकल्ट नहीं है. ये टोटल प्रोडक्ट कैसे बना? ये 1 यूनिट ऑफ लेबर, इधर टोटल प्रोडक्ट लिख रहे हैं, इधर लेबर, इधर टीपी या एमपी. नोट कर लीजिए. 1 यूनिट ऑफ लेबर में 10 चीजें बना दी, टोटल हो गई टीपी 10. 2 यूनिट्स ऑफ लेबर लगे 20, 3 यूनिट्स लगे 30 एंड सो ऑन. तो ये अपवर्ड मूविंग एक टीपी की लाइन बनेगी. ऑन द अदर साइड मार्जिनल प्रोडक्ट की जो लाइन है, कर्व डायग्राम बनेगा, वो इस शेप का बनेगा. इसका मतलब है मान लीजिए ये 10 है, फर्स्ट लेबर को लगाया, उसने आके 10 चीजें बनाई, सेकंड को लगाया, उसने भी 10 बनाई, थर्ड को लगाया, उसने भी, एंड सो ऑन. तो ये बीच वाले पार्ट दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधी सीधी एक लाइन ही बना सकते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर. अब इसके रीजंस क्या हैं? अगेन इसके 2 सिंपल से 2-3 रीजंस हैं. जैसे कल आई वाज गिविंग एग्जांपल कि जब इंक्रीजिंग रिटर्न्स आर टेकिंग प्लेस, तो एट दैट टाइम फुल यूटिलाइजेशन अभी हुई नहीं है. फुल यूटिलाइजेशन के पाथ के ऊपर
फैक्ट्री है, वो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ये प्रोड्यूसर है, ही इज मूविंग ऑन दैट पाथ, बट स्टिल 100% बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैज नॉट बीन अचीव्ड। जैसे अभी भी क्लास में 7 बच्चे आर एब्सेंट। हाँ जी, या फिर रोज जाना होता है, नहीं जाना तो फिर अपना देख लो, आपकी मर्जी है, मेरी ओर से कोई नहीं। चलिए, yes, let us come to the point. Still 7 students, मोहित आप पर बस करोगे? Still 7 students have not come and seats are still available for them. तो क्या 100% यूटिलाइजेशन हो चुकी है फिक्स्ड फैक्टर की? नहीं हुई। ठीक, तो ऐसे यहाँ पर हमने कहना है जो कांस्टेंट रिटर्न्स है कि अभी जब आइडियल रेशियो पहुंच जाती है उनकी, जैसे मान लो कल एग्जांपल दिया था 10 वर्कर्स और पूरे स्कूल की क्लीनिंग, 10 kg सामान और 100 बिस्किट्स बनाने का इक्विपमेंट जो भी मशीन है, या जो सीमेंट वाला एग्जांपल दिया था पूरा मटेरियल उसमें फिल कर दिया तो आइडियल पहुंच गया, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, और ज्यादा मटेरियल नहीं डाला जा सकता, जितना डाल सकते हैं उतना यूज कर दिया। ठीक, तो ये कांस्टेंट रिटर्न तब होते हैं जब एक आइडियल रेशियो ऑब्जर्व हो जाती है, रीच हो जाती है, पहुंच जाते हैं उसके ऊपर, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं देयर इज बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। मशीन अपनी पूरी कैपेसिटी में यूज की जा रही है, मशीन ने अपना पूरा सर्कल लेना है। चाहे आप एक सिंपल देखो, घर में एग्जांपल है, वॉशिंग मशीन होती है, सभी अपने देख लेना घर में जाके, उस पे लिखा होता है इतने केजी कपड़े डाले जा सकते हैं। ठीक है, बड़ी मशीन होती है, ज्यादा लिखा होता है, काम नॉर्मल सी है, मान लो 6 kg 7 kg। अब उसने अपना सर्कल पूरा करना है, चाहे आप उसमें 2 kg के इक्वल वेट डाल दो कपड़ों का, चाहे आप 1 kg के इक्वल डाल दो, चाहे आप 4 डाल दो, चाहे आप 5 डाल दो, जितना मैक्सिमम है। ठीक, सो मैक्सिमम जो वेट है that can be put in that machine, और वो stand up Mohit, stand up, don't check my patience, come to first bench. This ritual is daily observed in other section. यहाँ पे मैं अवॉइड कर रही थी, चलो कोई नहीं, but you are taking it for granted. मार के ही आ जाओ, मजा तो ले लो। मतलब दिल की तमन्ना दिल में ही रहेगी। Yes. तो आइडियल रेशियो इज अचीव्ड हियर, बेस्ट यूज, ऑप्टिमम यूज ऑफ फिक्स्ड फैक्टर लिखा हुआ है। क्लियर, मशीन पूरी यूज हो जाएगी, फुल कैपेसिटी यूज हो जाएगी। अब इसमें एक करेक्शन करिए, लाइन इज गिवन रॉन्ग हियर, लास्ट सेंटेंस मेक इट करेक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट, लास्ट में देखिए ये लिखा हुआ है मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट ए कांस्टेंट रेट, सो प्लीज डिलीट दिस, इन प्लेस ऑफ दिस राइट डाउन मार्जिनल प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। मार्जिनल के साथ we never have to use rate. I am speaking from Dinesh publication book. First point constant return का last line should be marginal product remains constant. बुक में लिखा हुआ है increases at constant rate, उसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, देन नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। पहले करना है नंबर 3 मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर, इसमें भी करेक्शन करिए लास्ट टाइम। Accordingly, its MP tends to, ये लिखा हुआ है it is written accordingly its MP tends to increase at a constant rate, ये गलत है, इसको लाइन को डिलीट करिए। In place of this write down accordingly marginal product again remains constant, उसमें कोई चेंज नहीं आता है, remains constant। ठीक है, remains constant। थर्ड पॉइंट की जहां लिखा है ना मोस्ट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर, इट्स थर्ड लाइन accordingly its MP tends to increase at a constant rate, इसको गलत है, this is wrong, cross this line, right, MP remains constant, MP of variable factor remains constant। ठीक है, मोस्ट एफिशिएंट यूज की जो लेबर है, जितनी भी लेबर रिक्वायर्ड है, when that much labor is used then what can be done with that labor, उसकी डिवीजन ऑफ लेबर कैन बी डन, वर्क कैन बी डिवाइडेड, प्रोसेस बेस्ड किया जा सकता है, आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है, वर्क कैन बी डिवाइडेड, एंड व्हेन वर्क इज डिवाइडेड देन मोस्ट एफिशिएंटली ऑल दोज वर्कर्स दे डू द वर्क, उनकी स्पीड भी इंप्रूव होती है। तो अलोंग विद द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, वेरिएबल भी अपना बेस्ट पॉसिबल दे पाते हैं।
क्योंकि उनके अंदर काम को डिवाइड किया हुआ है, मिक्सिंग सी नहीं हुई हुई कि सारे काम करो, स्पीड बढ़ जाती है, अपने आप ही ऑटोमेटिकली बढ़ती है। व्हेन द सेम रिपीटेड वर्क इज डन अगेन एंड अगेन बाय द सेम वर्कर टाइम एंड अगेन, तो हिज स्पीड इंक्रीजेस, इंप्रूव्स, तो वो ज्यादा काम करता है। तो जितना ज्यादा कर सकता है वो यहाँ पर इस स्टेज में वो कर रहा होता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता, ठीक है। और थर्ड वन है, ये सिंपल है, आइडियल फैक्टर रेशियो, कि वट एवर आइडियल सिचुएशन इज रिक्वायर्ड दैट हैज गॉट अचीव्ड इन दिस स्टेज। जितनी बननी चाहिए थी मशीन के साथ लेबर का या मशीन के साथ रॉ मटेरियल का, जो भी एग्जांपल आप सोचना चाहो, जो आइडियल एक बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। एक मशीन मान लो 5 वर्कर्स, जब तक 5 वर्कर्स पूरे नहीं होंगे तो होंगे हमारे पास इंक्रीजिंग रिटर्न्स। एज सुन एज 5 वर्कर्स लग जाते हैं तो फिर कौन सी रिटर्न्स होंगी, ये वाली कांस्टेंट। तो उसको कहेंगे आइडियल रेशियो, मतलब ऑप्टिमम या ऑप्टिमल। ऑप्टिमल का मतलब बेस्ट पॉसिबल, जो हो सकता है, बेस्ट एफिशिएंट जो हो सकता है या किया जा सकता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा सेकंड कांस्टेंट रिटर्न्स। ये इसकी एक्सप्लेनेशन इतनी ज्यादा नहीं है, मतलब ये मैक्सिमम की रीचिंग वाला ही पॉइंट है। नेक्स्ट आ जाइए थर्ड लॉ, थर्ड रिटर्न्स टू फैक्टर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर। Law of diminishing returns to a factor. Please write the statement. First part same, to a factor. Law of diminishing returns to a factor. हाँ जी, फर्स्ट पार्ट लिख सकते हैं अपने आप। As more and more units of variable factor are employed or used along with other fixed factors of production, as more and more units of variable factor are employed with other fixed factors of production, comma, total product increases at a diminishing rate. Total product increases, बेटे grow up, be mature, एक किडिश बिहेवियर छोड़ दो। जो बच्चे ज्यादा उम्र के होके भी किडिश बिहेवियर करते हैं उनको कहते हैं मेंटली रिटार्डेड। वो नहीं बनो, ग्रो अप नाउ। टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट ए डिमिनिशिंग रेट, कॉमा या एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर diminishes. Total product increases at a diminishing rate and या कॉमा जो भी आप लिखना चाहे, and marginal product of variable factor diminishes या decreases या declines, ठीक है। अब इसको देखिए, अभी टेबल डायग्राम, stand up Balpreet, stand up and stand there. वहां खड़े हो, that will be your observation of sorry. चलो, I said I was avoiding. Get up now, get up, hurry up. Stand there. चलो लिख लो पहले। ये जितनी आप ट्रिक्स करते हो ना, ये बड़ी पुरानी है। चलो चलो, आई एम नॉट गोइंग टू आर्ग्यू विद एनीवन। चलो स्टैंड अप। Same thing will be done with the girls also. No one is exception. If teacher just takes half a minute or few seconds to write on the board, you are feeling free to talk. Your own gossip starts. अभी तो मैंने क्वेश्चन पूछने ही नहीं स्टार्ट किए। सो यहाँ लिखिए लेबर 1 2 3 4 5 एंड टोटल प्रोडक्ट का लिखिए एग्जांपल 10 18 10 18 24 28 30. Now marginal product of labor will be, calculate करिए, first will remain same 10, then 18 minus 10 8 6 4 2.
अब हमने जो स्टेटमेंट पे लिखा है, डेफिनेशन लिखी है, उसको समझते हैं। यहाँ पे फिक्स्ड फैक्टर को लिखा नहीं है यहाँ पे, उसका कॉलम इज नॉट बीइंग शोन हियर, मतलब अज्यूमिंग कि कोई जो भी फिक्स्ड फैक्टर है वो सेम है। मेन जिसके करके चेंज आता है उसको एक टेबल में लिख दिया जाता है लेबल का। यहाँ लिख दो फिक्स्ड फैक्टर, यू कैन राइट मशीन या कैपिटल 111 222 जो आपने मानना है, फिक्स्ड है जो भी है फिक्स्ड ही है। अच्छा, अब फर्स्ट वर्कर को लगाया, टोटल प्रोडक्शन हो गई 10। इसके पहले कुछ भी प्रोडक्शन नहीं थी, तो व्हाट चेंज हैज टेकन प्लेस इन द टोटल प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ दिस फर्स्ट लेबर 10, चेंज ही 10 का आया, सेम ही लिख दिया 10 है। अब सेकंड वर्कर को लगाया, उसके आने के करके टोटल प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड 18 यूनिट्स बन गए। इस सेकंड वर्कर की अपनी प्रोडक्टिविटी कितनी होगी? अपनी प्रोडक्टिविटी मतलब इसके अपना काम कितना हो गया 18 माइनस 10, इसलिए आके 8 चीजों का कंट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक, इस जब मैं व्हेन आई से दिस these words, इसकी अपनी प्रोडक्टिविटी, दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एमटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी मींस उसका मार्जिनल प्रोडक्ट, उसके आने के करके जो चेंज है दैट इज द एमटी। अब थर्ड के आने के करके टोटल प्रोडक्शन हो गई 24, इसका अपना काम कितना हुआ 6, डिफरेंस निकाल लिया, ये चेंज आ रहा है, ये 8 का चेंज, ये 6 का। ऐसे ही फोर्थ वर्कर के आने के करके चेंज हुआ 20, टोटल हुआ 20, चेंज हो गया 4 का, अब ये हो गया 2 का। अब अगर इसको हम ध्यान से देखें तो टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग और डिमिनिशिंग, बढ़ रहा है, बट किस स्पीड से बढ़ रहा है? स्लो रेट से। पहले ज्यादा तेजी थी, फिर थोड़ा कम हो गया, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, मतलब इंक्रीज कर रहा है। यही लाइन वी हैव रिटन इन द लाइन, total product is increasing at a diminishing rate, slow speed. On the other side, what is happening to MP? It is continuously diminishing. इसका डायग्राम बना लीजिए, ये काम करते हैं। Please draw the diagram. Please draw this. Then causes we are left वो कल करेंगे परसों। यहाँ लेबर इधर टोटल प्रोडक्ट, इधर मार्जिन, ये डिमिनिशिंग टीपी और ये मार्जिनल प्रोडक्ट। Rest part we will do on Saturday. Sorry. No. Please make the correction. ये बनेगा, मैंने गलत उल्टा कर दिया। Make the correction.